करके मरहूम सैयद वहीदुल हसन हाशमी तमाम अम्वात मोमिनीन मोमनात की रूह को और बिलखुसूस जितने यहाँ मौजूद हैं उनकी अम्वात की रूह को हदिया करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। So of course we were talking about the namaz. As I mentioned the hadith from Janab Sayyida Salamullah Alaiha Salawat Padiya Baba Allahumma about the salli ala arrogance and Muhammad the wa ali significance Muhammad. of salah. She said, Inna salata tanzihan anil kibr. As-salatu tanzihan anil kibr. Allah made namaz wajib upon you to purify you from the dirt of arrogance. Wow. Now we understand the issue of arrogance in last two majlis we talk about. But now from the namaz, there is another issue, and that is the issue of the respect of parent. You cannot explain the status of parent until you understand the Allah. Bishop, Bishop. Where your parents they are standing and what is the position of your parents. Because Quran Majid it said, and always we are declaring in our prayer, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. Certainly we are worshipping Allah only. And we are seeking assistance and help from Him only. So the issue of the ibadat and worship, we worship Him only. So that means the ibadat is only for Him. If we understand the ibadat of the Allah, we can understand the respect of the parents. Another ayah in the Quran Majid, ayah number 23, Surah Bani Israel, which we call Surah Al-Isra also. Where Quran said, قَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Your Lord decided أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ, that do not worship anyone except Him. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And do goodness to your parents. So now we understand the boundary of the ihsan and ibadah. Wow. Wow. Worship for Allah
ihsan for parents. So that means from where the boundary of ibadat is started, till there you are supposed to be a good and kind with your parent. Another issue, another ayah from Quran Majid, from where we can understand the importance of our parents and the issue of the respect of our parents. Surah Al-Luqman, ayah number 14, where Quran said, Anishkur li wa liwalidayk. Remember, ibadat for Allah. You cannot worship anyone. But when Allah asked for the shukr, Allah said, Anishkur li wa liwalidayk. Be grateful to me and to your parents. Remember, here Quran is not differentiating. See, that kind of the shukr for me especially only, and the level of the shukr for your parent, this is different from my shukr and gratitude. Because when Allah commanded you about the obedience and ita'at, Quran said, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. O believer, obey Allah. Then وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. And obey your Rasul and obey ulil amr, aimma tahirin. But here itaat and the command for obedience, it was repeated. Once it comes for Allah, and the second time it comes for Rasul and aimma. So that means the obedience of Allah, it was the different from that obedience. But when Allah asked for the shukr and the gratitude or thankfulness, Quran is not saying, see, be thankful to me and be thankful to your parents. But Quran said, be thankful to me and your parents. So in the same category. We can understand from the hadith of Rasulullah Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The importance of the parents and the respect of the parents. There was a person, he came, he said, Ya Rasulullah, I did the one nazr, I wove the nazr. Remember, one nazr which we are doing for Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, this is niyaz or nazr or tabarruk. Another nazr, someone is making commitment with his Allah, vow. He said, Ya Allah, if I will get success in my business, inshallah I will pray 2 rakat namaz. That is nazr. If my father will be recovered, I will observe fast for 3 days. As you know that this is the sunnah of Janabi Sayyida Salamullah alayhi salawat padega ba awaz buland. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Or I can give such amount to the poor people or needy people. I will spend some amount for the azai manus and any kind of dinas, you can do it. That person, he came to Rasul and he said, Ya Rasulullah, I did the nazr and my nazr was to kiss the gate of Jannah and to kiss the doorstep of the Jannah. So that kind of the nazr is not in your hand. Of course, you be practical, perform your job, inshallah thereafter when you will get the Jannah, at that time you can perform. But that nazr you are supposed to do before your death. He came, Ya Rasulullah, Alhamdulillah. What I asked from the Allah, Allah has provided me. Now this is the time to do my job. Where I will go? To kiss the gate of the Jannah. To kiss the doorstep of the Jannah. Rasulullah said, Rasul, he is aware that whether these parents are alive or not. But see, there is a long procedure. Rasul, he said, see, if your parents are alive, look. If your parents are alive, go and kiss the forehead of your father and feet of your mother. Wow, wow, wow. If you are kissing forehead of your father, it's like someone who kissed the gate of the Jannah, and if someone he kissed the feet of his mother,
it's like someone who kissed the doorstep of the Jannah. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Already we talked about. He said, Ya Rasulullah, my parents are not alive. They died. Rasul said, okay, if they are not alive, go and kiss the grave of your parents. Kiss the grave of your parent. That riwayah narrated from Ummul Mu'mineen Hazrat Aisha. The issue is that if kissing of the grave, it was haram, so what about the ordinary people? And Rasul he said, go and kiss the grave of your parents. Not the grave of Ahlul Bayt or the grave of Rasulullah. Grave of your parent, kiss it, it's like kissing a Jannah. He said, Ya Rasulullah, when they died, at that time I was very young and small. I don't remember. For that reason, we are always suggesting you visit the grave of your parent, so at least you will remember it. He said, Ya Rasulullah, I don't know. Rasul said, okay, see, Islam has the solution for every problem. Maybe if anybody was in the place of Rasulullah, he said, now chapter is closed. Your parents are not alive. You do not know the grave of your parent. Chapter is closed. Rasul said, still chapter is open. Draw the two imaginary lines. One line you name as a grave of your father, another line consider as the grave of your mother. Kiss it. Now you fulfill your nas. The issue is that if he can make or draw the imaginary line, it's like a grave of his parent, and that grave is like a bab of gate of Jannah or the doorstep of the Jannah. So what about the zari or alam with the people they are asking? We are following the same tradition. If there you are saying so, it's of course it is okay. So what about that one? Okay, he did. So now that was the one incident from the life of Rasulullah. Another incident about the respect of your parents. You know that there is a big list of the companion of Rasulullah. There are the big name. Those who are companion of Rasulullah. But among them, can you tell me what is the definition of Sahabi? One very unusual, one completely incorrect definition of the Sahabi is, among the Muslim Ummah, it was defined that the one who has seen the Rasulullah, he became the Sahabi of Rasulullah. In the majalis, in the lectures, you are hearing that the one who has seen the Rasulullah and he has seen the period of Rasulullah, he became Sahabi of Rasulullah. Are you agree with it? No. No, why? Because the issue is that if someone has seen the Rasulullah or seen the time of the Rasulullah, he became the Sahabi, then I can say Hazrat Abu Lahab was the Sahabi. Hazrat Abu Jahl was a Sahabi. Hazrat Abu Sufyan was a Sahabi. Because they all have seen the Rasulullah. They all have spent the time in the time of Rasulullah. No, this is not the definition of the Sahabi. Sahabi, the one who has seen the Rasulullah, the one who has accepted the Rasulullah, and the one who has accepted the Islam, and the one who was obedient to the Rasulullah, he was the Sahabi. Beshak. So that is salawat playing about Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मतलब इससे बेहतर और बुलंदर सलवात पड़ेगा Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the issue is that meeting with Rasulullah, acceptance of Rasulullah, obedience of Rasulullah, these make a person as a Sahabi. But in that list there is a name, and that is the name of the Uwais Qarni, who never met the Rasulullah and he became the Sahabi of Rasulullah. Wow, subhanallah. So actually this was the preface to explain the image of the parents and the position of the parent.
and the status of the parent. Uwais Qarni, he never met Rasulullah, but he became Sahabi of Rasulullah. Why? The reason is that because Rasulullah, he said, see, the one who has done the ziyarat of Ali ibn Abi Talib is like the someone who did the ziyarat of me. Wow. 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 So Uwais Qarni, he came and he did the ziyarat of Ali ibn Abi Talib and he became the Sahabi of Rasulullah. But the another issue, the other side and the other dimension, Rasulullah always remembered him. He was sitting in the gathering and there was a companion surrounded by a companion, and whenever he faced the direction of the Qarn, it is in Yemen. When Rasulullah faced the position of the Qarn, he said, I am smelling fragrance of Uwais Qarni. How he got this fragrance? Just because of the obedience of his mother. Just because of the obedience of his mother. Because Uwais Qarni, he wrote a letter and he said, Ya Rasulullah, I would like to join you. I would like to do the jihad with you. I would like to do the ziyarat of you, Rasulullah, but there is a one problem, and the problem is that my mother is still alive. Can you tell me what is my duty? Rasulullah said, you stay over there, you are considered as my sahabi, and you are receiving sawab of the sahabiyat, and you are receiving sawab of the ziyarat. But Ya Rasulullah, I would like to get the sawab of the jihad. Rasulullah said, one night if you spent with your mother, you receive the sawab of the mujahid who spent 1 year in the jihad fi sabilillah. Wow. This is the mother. One night. Once Hazrat Uwais Qarni, he asked, Ya Rasulullah, I would like to join. Rasul, again he said. One day he took the permission from his mother. Oh my mother, can you allow me to go and do the ziyarat of Rasulullah and return before the sunset? Khan is not very close to that place, but he has the iman and faith in the power of Rasulullah. I can come back. Why he is asking just permission for the day? Because Rasulullah has not allowed him to come. But night time you must be with your mother. He said, okay. Mother said, okay, my son, you are only one who is looking after me. You go, do the ziyarat of him, but make sure you come by evening. He came to Medina. He was looking for Rasulullah. Rasulullah was not there. He has gone for some battle. But it was his promise that to do the ziyarat of Rasulullah and come back by the evening. He returned by sunset. That visit considered as the ziyarat of Rasulullah because of the obedience of his mother. Salawat padhenge baawaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. एक मर्तबा और सलवात पड़ेगा बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सलवात पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहरहाल तकरीर के दूसरे मरहले में जहां मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी, कल वहीं से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो इशू पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का है, आसान जबान में तकरीर के दूसरे हिस्से में बढ़ाकर मुकम्मल कर दूं, ऐसा ना हो कि मजमून अधूरा रह जाए। बजीज हो, कुरान मजीद ने बता दिया कि वालिदैन और पेरेंट्स का कितना हक है और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। बस जहां से सरहदे इबादत शुरू होती है वहां तक आपकी सरहदे एहसान है वालिदैन के लिए। अनिश्कुर ली वले वालिदैन। अब आइए आप ये देखिए,
कुरान मजीद कह रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। अच्छा, एहसान का मामला देखिएगा, एहसान है क्या? अपने वालिदैन के साथ अच्छाई करो, नेकी करो। एहसान का मतलब क्या है? जब हमने अरबिक जबान में एहसान का मतलब तलाश किया तो एहसान का मतलब है नेकी में पहल करना। मैं आपको एक बड़ी मंजिल से ले जा रहा हूं। एहसान का मतलब है नेकी में पहल करना। मिसाल के तौर पे अगर मुझे जाफरी साहब ने कहा कि मौलाना ये किताब आपको मैं तोहफतन दे रहा हूं, अब अगर उन्होंने दी तो ये एक नेकी, एक एहसान है पहले इनकी तरफ से। अब उसके बाद अगर मैं दूं तो वो एहसान नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है किताब इन्होंने दी, गर्दन से उतारो ये। बहुत से लोग नेकी नेकी समझ के नहीं करते, क्योंकि हमारी गर्दन पे है तो ये गर्दन से निकल जाए, ताकि कल कला को अगर हमें कुछ इनसे मुखालफत हो तो आसानी से आजादी से मुखालफत कर सके। माशाल्लाह नियत बड़ी साफ होती है हम लोगों की। तब आप ये देखिएगा हुआ क्या। अब ये मसला ये है कि नेकी ये है, एहसान ये है कि नेकी में पहल की जाए। नेकी में पहल की जाए, आपके ज़हन में रहे। माबूद हमने तूने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया। नेकी में पहल करने का नाम अगर एहसान है तो मसला ये कि हम अपने वालिदैन के साथ नेकी में पहल कर ही नहीं सकते। माँ ने दूध पिलाया, माँ ने रातें जाग के काटी, कपड़ा पहनाया, हमारी गलाजतें साफ की, खूने जिगर पिलाया, जागती रही, बेदार रही। बाप ने हमारे लिए ये सब कुछ किया। हाँ, ये और बात है, दीन नहीं पता, एक अलग मौजू है। दीन नहीं बताया अलग मौजू है, लेकिन उसका ये टारगेट तो रहा कि अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दे दे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना दे, ये सब कुछ दे दिया। नहीं अजीज, तब हम एहसान कहां कर सकते? खुदा ने कहा नेकी में पहल का नाम एहसान, लेकिन आइए इस एहसान को और समझे कि करीम जब एहसान करने पर आता है, करम करने पर आता है, तो मुश्किलात को किस तरह से आसान कर देता है। कुरान मजीद सूरह रहमान एक आयत में 2 मरतबा एहसान आया नहीं आया? हल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान। अब आप ये देखिएगा जो कुरान मजीद की आयत है ना, हल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान, ये आए करीमा मैंने कुरान की कुछ आयतें जो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से याद है, भूलते ही नहीं। जो नाशुक्रा उसे भी याद, जो नाफरमान उसे भी याद, जो बेनमाजी उसे भी याद। यानी अपने फायदे के लिए कुछ हदीस हमने याद कर रखी है, अपने फायदे के लिए कुछ आयतें याद कर रखी है। अब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान कहा कि जहां किसी को अपनी किसी नेकी का ताना देना होगा, अजीब आदमी है ये, मैंने इसके साथ तो ये सब कुछ किया, लेकिन हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मेरी नेकी का इसने कोई बदला नहीं दिया। और सही जगह के ऊपर ही आया था, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। दूसरा मामला हमारा कहां आता है? दूसरा मामला इसी तरीके से आता है, अरे भाई देखें भाई, आपने जो सूरह पढ़ा ये सूरह सही नहीं है, ये जो नमाज आप अदा कर रहे हैं नमाज सही नहीं है, ये जो आपकी क़िराअत है सही नहीं है। कसम खा के रखी है ना कि हमको सही करनी नहीं है, कसम खा के रखी है कि हमें कुरान सही करना नहीं, नमाज सही करना नहीं, इबादत सही नहीं करना, बस जो गलत है उसी ढर्रे पे बाकी रहना, उसी ढर्रे पे बाकी रहना। हमने कहा सही कर ले, कहा मौलाना आपने सुना नहीं है मजलिस में इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे होता है, गलत हो गई कोई मसला नहीं, मेरी नियत तो सही है ना। अब आप ये देखिए कि मेरी नियत तो सही है, मैंने पढ़ा गलत है, नियत सही है मौलाना तो सब कुछ सही है। अच्छा, कुछ लोग और बहुत बड़ा दिमाग लेके आते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा दिमाग लेके आते हैं। अच्छा, मैं वो वाला दिमाग नहीं कहता हूं कि आपने सुना होगा कहा कि एक मार्केट के अंदर कुछ दिमाग बिक रहे थे, हाँ, कौमी एतबार से तकसीम होकर, का ये दिमाग कितने का, ये $100 का, वो $200 का, ये अमेरिकन का है, ये जापानीज का, फला का, ये फला कौम का है $1000 का, ये तो बड़े ही बेवकूफ और अहमक मशहूर है, इतनी अकल भी नहीं रखते, उनका इतना महंगा क्यों? का मसला ये है ये दिमाग अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमारी कौम का मसला है कि दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद दिमाग बहुत बुलंदी पर सर चढ़े हुए। अब मसला आपको वापस लेकर आऊं, बात ये हो रही है, दिमाग की बात हो रही है, हमने अपने आप को कहां पहुंचा लिया। हमने कहा भाई देखें,
आपका ये हा सही नहीं है, आपका ये स्वाद सही नहीं है, आपकी ये सीन सही नहीं, तलफ़ुज़ और मखारिज को सही कर लीजिएगा। कहने लगे रहने दीजिएगा, हजरत बिलाल रसूल के कितने करीबी साहबी थे। खुदा ने कहा कि बिलाल की सीन खुदा के लिए शीन है, बिलाल का काफ खुदा के लिए काफ है। माशाअल्लाह, आप हजरत बिलाल ने कोड़े भी खाने पड़ेंगे, रेगिस्तान में लेटाया भी जाएगा, पेट पे पत्थर भी बांधे जाए, ये सब चीजों के लिए क्या उसके लिए नहीं तैयार, इसके लिए तैयार है। यानी आज में जाए, जहमत नहीं करनी पड़े, सलवात पड़े बाबा एक मर्दों मिलजुल के सलवात पढ़िएगा बाबा। मौलाना मगर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपकी एक दूसरी बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है, वो ये कि मौलाना आप दुखती रग पे हाथ क्यों रखते, कोई दूसरी रग नहीं मिलती आपको? दूसरी रग ढूंढ लिया कीजिए। अब यहीं के ऊपर तो अभी नर्स जो है कोच के गई थी, सज्जाद साहब महसूस होंगे लफ्ज़ कोचने पर, तो मसला ये कि यहीं पर जो है इंजेक्शन कोच के गई थी और यहीं पर तकलीफ है, फिर वहीं लगा दिया आपने। नमक पाशी तो ना कीजिए। नहीं वापस चले आए फिर हम। अब क्या हुआ, कभी हजरत बिलाल का खुदा ने कबूल कर लिया तो हमारा क्यों नहीं कबूल? अभी तक तो बिलाल के बराबर हो रहे थे, अब क्या हुआ, बिलाल का कद कुछ कम हो गया। नहीं देखा आपने, हो रही जुर्रतें, हम महसूस नहीं करते कि सुबह से शाम ऐसी कितनी जुर्रतें, कितनी गुस्ताखियां हम कर रहे होते हैं। पहले तो हमने कहा कि आखिर बिलाल की सीन शीन हो गई, बिलाल की काफ काफ हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़कर हमने क्या, जब बिलाल की कबूल हो गई थी, अच्छा तो आप कुछ बहुत बड़ी पर्सनालिटी हजरत बिलाल से भी बढ़ गए। नहीं आइए मैं वापस चलाऊं जिस चीज की तरफ आ रहा हूं। कुरान मजीद ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, भूला नहीं मैं यहीं पर तो था। कहा देखो एहसान का बदला एहसान है। माबूद ये समझ में नहीं आया, पर नेकी में पहल को तूने एहसान कहा, तो नेकी में पहल तो एहसान है, लेकिन अब जो बदला दिया जाएगा, हमारे यहाँ लड़के की शादी थी, उन्होंने गिफ्ट में 1000 रुपए का लिफाफा दिया था, अब हमें 1100 देना है ना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नहीं हमारे कानून खुद कुरान और हदीस से कि हमेशा तुम्हारे साथ जो नेकी की जाए उससे बेहतर नेकी करो। किसी ने तुमसे कहा सलाम अलैकुम, तो तुम उसके बाद कहना व अलैकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कम से कम उतना, वरने उससे बेहतर देना। माबूद ने कहा कि अब नेकी का मामला ये होगा, नेकी का मामला ये होगा कि एहसान तो ये कि नेकी में पहल हो, लेकिन हम अपने वालिदैन से नेकी में पहल कर ही नहीं सकते। माबूद पहल तो दूर की बात, उम्र गुजर जाती है, हम उनके एक एहसान का बदला नहीं चुका सकते। कहा लेकिन हां तुम बेहतर करो, अब बेहतर हम कर ही नहीं सकते। कहा ठीक है, जो कर दो वो कबूल कर लेगा, जो कर दो वो कबूल कर लेगा, हां वालिदैन को राजी रखना। अच्छा माबूद वालिदैन को राजी रखना क्या मामला? कहा इसलिए कि अगर वो राजी तो हम राजी, अगर वो नहीं राजी तो हम नहीं राजी। अजीब बात है, हम कहां फंस गए। या अल्लाह अभी तो तूने हमको यहां पे रोक के रखा था, फातिमा राजी होंगे तो खुदा राजी होगा। यहां तूने रोक के रखा था कि अहले बैत राजी होंगे तो खुदा राजी होगा। यहां रोक के रखा कि नबी राजी होंगे तो हम राजी होंगे। अब तूने और फंसा दिया कि अगर माँ बाप राजी होंगे तो खुदा राजी होगा। या अल्लाह मेरे माँ बाप तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मेरे माँ बाप तो बेदीन और गुमराह हैं, मेरे माँ बाप तो नमाज रोजे से दूर है। अब बता माबूद इनकी इताअत कैसे करूं? इनकी करता हूं तो तेरी नाफरमानी होती है। ऐसी सिचुएशन आती नहीं आती है? वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत आती है। वेस्टर्न कंट्रीज का हमने शोर उठा रखा है, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज में इससे ज्यादा बुरी हालत है इस वक्त। बेशक बेशक बेशक। अब आप ये देखिएगा कि अब वो देखें कि वालिदैन की इताअत करें तो खुदा राजी नहीं रहता। बस उसके लिए कुरान की आयतें भी मौजूद, वो सारी आयतें नहीं पढ़ूंगा, एक हदीस पढ़ूं जहां रसूल खुदा फरमाते हैं कि ला ताअता लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, बस तुम मखलूक की इताअत नहीं करना जहां से खुदा की नाफरमानी हो रही है। तो अब यही से समझ में आ गया कि अगर माँ बाप का क्लैश हुक्म खुदा के सामने आ जाए तो अब तुम माँ बाप की नहीं इताअत करना, लेकिन इसको ग्राउंड बना के जहां इताअत है उसे भी तर्क न कर देना। मैं और आगे बढ़ रहा हूं, मैं यही नहीं रुक रहा हूं। इसलिए हमने कहा भाई देखिए माँ बाप की इताअत वहां पर नहीं हो सकती, वहां पर नहीं हो सकती, हर जगह नहीं कहा जा रहा है। बकिया मामला में अच्छा माँ बाप की इताअत कहां तक है वो भी देख लीजिए, माँ बाप की इताअत कहां तक है वो भी देख लें। हम ये देखें कि एक बच्चा है,
मुस्तहब नमाज पढ़ रहा है। वाजिब नमाज वाजिब है ना, इसमें उसको जवाब नहीं देना, वाजिब नमाज में नहीं बोलेगा, लेकिन मुस्तहब नमाज है। मुस्तहब नमाज, सुन्नत नमाज, नमाज तो खुदा की है ना, इबादत खुदा की हो रही है। हम कई मरतबा कंप्यूटर पे बैठे हुए कोई बहुत ही अच्छी वेबसाइट देख रहे हैं, या फिर उसके बाद ऑनलाइन होकर गेम खेल रहे हैं। बस अजीजों, ऑनलाइन होकर गेम खेल रहे हैं, अच्छा नहीं, जिससे गेम खेल रहे हैं वो जैपान में बैठा हुआ है, जिसके साथ गेम खेल रहे हैं वो कहां बैठा हुआ, बर्तानिया में बैठा हुआ, इतनी दूर बैठा, उसके साथ खेलने। अजीब बात है, हमने कहा कनेक्टिविटी ने दुनिया को कितना छोटा कर दिया कि हमारे एक कमरे के अंदर, कमरे में एक लैपटॉप के ऊपर पूरी दुनिया सिमट आई। दुनिया छोटी भी हुई, लेकिन इस तरक्की ने दुनिया को कितना बड़ा कर दिया कि जो जापान में था वो मेरे सामने है, जो यूके में था वो मेरे सामने है। साथ खेल रहे थे, साथ चैट कर रहे थे, साथ देख रहे थे, साथ बातें हो रही थी, लेकिन कमरे में बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से खांस रहा था, उसकी खांसने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, उसका दर्द नहीं महसूस हो रहा था। मां बीमार थी, उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। अब मुझे बता दो कि दुनिया छोटी हुई या बड़ी हुई, तरक्की करने के बाद फासले हमने समेट भी लिए और अपने घरों में फासले बढ़ा भी लिए। उस आदमी के लिए तो दुनिया बहुत छोटी, लेकिन मां बाप कितने दूर हो गए करीब रहने के बाद। हाँ जी, जो मैं और समेटते हुए बात को आसान करना चाहूंगा, लेकिन मिलजुल कर सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके पास खुदा को राजी करने के ये दो दरवाजे बाकी हैं। बहुत खुदा ना खास्ता अगर ये साया सर से उड़ गया तो रहमान और अरहमुर रहीमीन को भी राजी करना आसान नहीं है, उसे भी राजी करना आसान नहीं। बजीजों एक बहुत बड़े सहारे, बहुत बड़े सायरे वालिदैन। और याद रखें, जितनी नेकी कर सकते हो कर लो, लेकिन जितनी भी करोगे वो बहुत कम है। जितनी भी करोगे वो बहुत कम है। कितनी कम, आप अंदाजा लगाएं कितनी कम है। आने वाला आया छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। हमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ? हमने कहा भाई वालिद को तो मैं सालाना एक जोड़ा कपड़ा भी दिला देता हूँ, वालिदैन का मैं बहुत ख्याल भी करता हूँ, माँ का ये करता हूँ, बाप के साथ ये करता हूँ, वो करता हूँ। बीमार हो गया खुदा खास तो मैंने उनके साथ ये सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया। हमारी लंबी लिस्ट अपनी जगह। छठे इमाम के पास आने वाला आके कहता, मौला मेरे माँ बाप, मेरी मां बूढ़ी हो गई, उसको खाना मैं अपने हाथ से खिलाता हूं, उसकी गंदगी मैं साफ करता हूं, उसका कपड़ा मैं बदलता हूं। ये सब कुछ करने के बाद वो क्या कहता है? कहता है मेरी मां जो बूढ़ी हो गई तो हज के लिए अपनी मां को मैं अपने कांधे पर बिठा कर लाया हूं। तवाफ कांधे पर बिठा के किया है, सही कांधे पर बिठा के की है। आज के जमाने में जब बहुत आसान हो गया, मार्बल लग गए, अपना अकेले तवाफ मुश्किल होता है। कल स्टोन है, रॉक्स हैं, उनके ऊपर चल रहा है, पांव जख्मी हो जाएं, उसके ऊपर चल रहा है, मां को कांधे पे बिठा के मां का तवाफ करा रहा है, मां का हज अंजाम दिला रहा है। अरफात और मिना में बसों में नहीं जा रहा है, बेबसी के आलम में जा रहा है। ये सब कुछ कर रहा है, उसके बाद कह रहा है मौला बता दीजिए, इतना बता दीजिए। नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से आगा का मौला इतना बता दीजिए, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? इमाम ने फरमाया नहीं, तू अपनी मां का हक नहीं अदा कर सका। मैं कहूंगा मौला अगर वो अपनी मां का नहीं हक अदा कर सका तो हमने किया ही क्या है? हम कहां खड़े हुए हैं? बेशक इमाम ने कहा तूने हक नहीं अदा किया। उसके बाद इमाम का एक जुमला है कि जब तू अपनी मां के पेट में था और तेरी हरकत के नतीजे में तेरी मां को जो एक दर्द उठा था, उस दर्द से जो तेरी मां को तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ के बराबर भी तूने अभी हक नहीं अदा किया है। जब उन तकालीफ के बराबर हक नहीं अदा किया तो बकिया हुकूक तो अपनी जगह। आप अंदाजा लगाइए, इमाम फरमाते हैं कि तूने हक नहीं अदा किया। आइए, अगली मंजिल माँ बाप का एहतराम। बहुत सी छोटी मोटी बातें होती जो इग्नोर हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है।
रिस्पेक्ट का मामला ये कि अगर तुम बाप के साथ जा रहे हो तो बाप के आगे नहीं चलना, पीछे चलना। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमाम एक आदमी से आप अंदाजा लगाएं, अखलाक का नमूना है अहले बैत। एक शख्स से जिंदगी भर सिर्फ इसी बात पर बात नहीं की कि बाप के साथ चल रहा था और बाप के आगे आगे चल रहा था। इमाम राजी नहीं होते। अगली मंजिल देखें आप, अगली मंजिल देखें कि हमारे पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आने वाला एक शख्स आया, अपने बेटे के साथ आया। बेटे का ये देखिए, छोटी छोटी चीजें हमारे घरों में होता है कई मरतबा ये वाकया हम तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा मसला बन जाती है। आया आने वाला बेटे के साथ आया, घर में मेजबान के तौर पे मौलाए कायनात भी मौजूद हैं, मोहम्मद हनफिया भी मौजूद हैं, अली की मेहमान नवाजी के क्या कहने। इमाम मेहमान का खाना खा चुका तो उसको हाथ धुलाने के लिए आपने लोटे में पानी लिया, बाप को बुलाया, उसने कहा मौला आप मेरे आका हैं, आप मेरे इमाम हैं। मौला ने कहा तू मेरा मेहमान है। इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, अली इब्न अबी तालिब की मेहमान नवाजी को नहीं पहुंच सकते। पता है ना हजरत इब्राहिम के लिए कि हजरत इब्राहिम के पास अगर कोई मेहमान नहीं होता था तो खाना नहीं खाते थे, मीलों चले जाते थे, मेहमान को ढूंढ कर लेके आते थे, खाना खिलाते थे। बल्कि तो एक मर्तबा तो ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ढूंढते हुए चले गए, कोई अल्लाह का मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा नहीं मिला, काफिर मिले। इब्राहिम ने उनको खाना खिलाया, एक वक्त मेहमान, दो वक्त मेहमान, 3 दिन मेहमान। अब 3 दिन खाना खा चुके, जाने लगे, कहने लगे इब्राहिम तुमने बड़ी खातिर की, बहुत अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ, बताओ अब तुम्हारा हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें। कहा अगर अदा ही करना चाहते हो तो मेरा नहीं, जिसका रिस्क है उसका शुक्र अदा कर दो। वाह वाह, मेरा क्यों अदा करोगे? जिसका रिस्क है, जिसका खाया उसका शुक्रिया अदा करो। हम तो खुदा का खाया हुआ, जब खुदा का दिया हुआ किसी को खिला देते, मैंने तुझे खिलाया था, मैं ही तो हूं, मैंने तुझे पहनाया था। बाज़ीज़ा ने ग्रामी, जबकि ये शान तो खुदा की है, खिलाता है खाता नहीं, पहनाता है पहनता नहीं, सुलाता है सोता नहीं है। बाज़ीज़ा ने ग्रामी, अब आइए देखें वो शख्स, वो यानी ग्रुप था। इब्राहिम ने कहा नमाज पढ़ लो, तो यानी सजदा कर लो मेरे रब का। सजदे पे हमेशा बहस हुई है, जो सजदे पर ईमान रखते हैं वो भी सजदा करने के मसले में बड़ी बहस करते हैं। अब उससे कहा कि सजदा कर लो, उन्होंने कहा देखो हम खुदा को मानते नहीं, तुम्हारे खुदा को नहीं मानते, उसका सजदा करें, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। बच्चों के जरिए से एक जुमला जरूर मालूम हो गया कि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि इम्पॉसिबल। बहरहाल उसने कहा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इब्राहिम ने और समझाया, आखिर में जब ज्यादा समझाया तो उसके नतीजे में इब्राहिम की बात का कुछ लोगों पर असर होने लगा, एक बंदे पे हो गया। उसने कहा ठीक है, जब इसने इतना एहसान किया है तो एक सजदा करने में क्या जाता है, एक सजदा करने में क्या जाता है। शैतान नहीं समझ पाया था, वो काफिर समझ गया। हाँ, शैतान नहीं समझ पाया था, वो काफिर समझ गया। उसने कहा एक सजदा करने में क्या जाता है, क्या कर लेते हैं। दूसरों को भी उसने राजी कर लिया। अजीब बात, कितना अच्छा काफिर था कि मुनकिरीन खुदा को सजदे के लिए राजी कर लिया। हम कितने प्यारे मोमिन हैं कि मुआलियान अहले बैत को सजदे से दूर कर देते हैं, उन्हें इस बात पर राजी कर लेते कि सजदा ना करें। बाजी तो एक मर्तबा उससे कहा, वो सब उन्हें कहा ठीक है, वो सब भी सजदे में गए। कहा जाओ मेरा रब का सजदा करो, बस सजदे में उन्होंने सर रखा। इब्राहिम ने भी सजदे में सर रखा, लेकिन अब इब्राहिम ने जो सजदे में सर रखा तो दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा सर झुकाना इनके बंदे का काम था, इनका दिल झुकाना तेरा काम है। मैं अपना काम कर चुका, तू अपना काम कर दे। सलावत पढ़े, बंदा जितना कर सकता था वो कर चुका। माबूद आगे तेरा काम है, तू अपना काम कर दे। मैंने इनके सर झुका दे, तू इनके दिल झुका दे, क्योंकि अगर सर झुकेगा तो बगावत हो सकती है, दिल झुकेगा तो बगावत नहीं हो सकती।
बाबा मतलब इससे बेहतर बुलंदतर सलवात पड़ेगा बाबा से बुलंद। तो अब आप ये देखें, मौला ने कहा मैं तुम्हारा हाथ धुलाऊंगा, वो नहीं मान रहा है। अली इब्न अबी तालिब ने कहा तुम मेरे मेहमान हो, तुम मेरे मेहमान हो। अली इब्न अबी तालिब के हुक्म के से मजबूर इमाम पानी डाले, उसने अपना हाथ धो लिया। बेटा भी साथ था ना, बेटे को बुलाया, अब लोटा मोहम्मद हनफिया के हाथ में दिया। देखिए छोटी छोटी बातें होती जो हम अवॉइड कर जाते हैं, कितनी अहम होती। अब लोटा मोहम्मद हनफिया के हाथ में, पॉट मोहम्मद हनफिया के हाथ में दिया, कहा बेटा अब इस बच्चे का हाथ आप धुलाइए। मोहम्मद हनफिया ने पानी डाला, हाथ उसने धुला, बात खत्म हो गई। बाप और बेटे जाने लगे। बेटे को इमाम ने रोका, कान में कहा कि अगर तू अकेला आता तो तेरा हाथ कि बहैसियत मेजबान मैं ही धुलाता, लेकिन अपने बाप के साथ आया था, लिहाजा तुझे ये ख्याल न होने पाए कि तू तेरे बाप के बराबर है, लिहाजा तेरे बाप का हाथ मैंने धुलाया और तेरा हाथ अपने बेटे से धुलवाया। तो आप अंदाजा लगाएं ये ज़ियाफत। लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसे हम भूले बैठे हुए। याद रखें तो मकामे वालिदैन तो कहीं से परे, कहीं से बुलंद है। ऐसी बहुत सी चीजें जो हम भूल जाते हैं। एक बात और भी कहता हुआ चलूं, बिर्रु आबाकुम या बिर्रु अबनाकुम, तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करे। हाँ अज़ीज़ान इकरामी, आखिरी यानी जो जवान और बच्चों के लिए एक पैगाम। हम कई मर्तबा कहते हैं कि देखें मैं बड़े इंटरव्यू देता हूं, उसके बाद पता नहीं समझ में नहीं आता क्या होता है, मेरा काम नहीं बनता। बहुत से लोगों को शिकायत होती है। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना जैसे किसी ने बांध दिया है, आप खुल के इबादत तो कीजिए, कोई बांध नहीं पाएगा। खुल के इबादत तो कीजिए, कोई बांध नहीं पाएगा। हमने कहा देखें मेरी तरक्की किसी ने बांध दी, इंटरव्यू हो जाता है, कोई बिजनेस कर रहा, बात एकदम आखिरी मरहले में और उसके बाद टूट जाती है। आइए उसका एक सबब बताता चलो और उसका हल बताता चलो। असहाबे कहफ का नाम तो सुना है, कुरान मजीद में सूरह कहफ है। असहाबे कहफ जो है ये वो लोग हैं कि जो हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े हो गए जिसने खुदा की तौहीद का इनकार किया था, और जब उन्होंने देखा कि वहां उनके लिए तौहीद पर अमल करना मुश्किल है, इस्लाम पर बाकी रहना मुश्किल है, तो फिर उसके बाद बस्ती छोड़ दी। बस्ती छोड़ने के बाद एक गार में, एक केव में चले गए। केव में चले गए और उसके बाद पत्थर रखा, पत्थर ने उस केव को बंद कर दिया। कुरान के कहने के मुताबिक फॉर द पीरियड ऑफ 309 ईयर्स, 309 साल तक उसी गार में सोते रहे। हम भी सोते हैं, हमारी भी लंबी नींद होती है, सोते हैं, लेकिन इतनी लंबी नींद होती है कि फजर कज़ा हो जाए माशाअल्लाह। नहीं इतनी लंबी नींद होती, हमारी इतनी लंबी नहीं होती, इतनी होती कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम के वक्त उठ जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी बेकार नहीं, इकट्ठू नहीं है। आप देखिएगा दुनिया के किसी भी आदमी की अगर 4 बजे सुबह की फ्लाइट हो तो कभी मिस नहीं होगी, लेकिन हमारी नमाज रोजाना कज़ा हो जाएगी। अच्छा हम कई मरतबा कहते हैं ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन, बदतरीन दिन, कई मरतबा कुछ लोग डायरियां भी लिखते हैं। अच्छा अलग अलग शौक होते हैं, कुछ लोगों का डायरी लिखने का शौक होता है, कुछ लोगों का दूसरों की डायरी पढ़ने का शौक होता है। हॉबीज है अपनी अपनी भाई, इंसान को फ्रीडम हासिल है, हर इंसान अपने हिसाब से। नहीं अजीज, जो फ्रीडम की बात करना हॉबीज है, दूसरे की डायरी खोल के पढ़ लेना, दूसरे के मामलात को देख लेना, सीक्रेट को देख लेना, नहीं अजीज वो कतई तौर पे जायज नहीं है, हराम है ये समेटते हुए। अब इस चीज को देखिए आप,
ये असहाबे कहफ 309 साल तक अंदर बंद रहे, आंख खुली, अब निकलना चाहा, गार के ऊपर पत्थर है, पत्थर को हटाना चाहा, भूख महसूस की, पैसा जेब में तो है, लेकिन मसला निकलेंगे तो खाना खरीदेंगे, निकलेंगे तो रोटी खरीदेंगे, निकलेंगे तो सालन खरीदेंगे, निकलना मुश्किल, पत्थर सामने है, अब पत्थर हटाना चाहा। एक ने कोशिश की, दो ने की, तीन ने, सबने मिलकर कोशिश की, पत्थर है कि हटता ही नहीं, पत्थर है, हटता ही नहीं। खुदा तुमसे कह रहा है ना, मुखलिसीन लहुद्दीन, बखुलूस के साथ उसकी इबादत करो। अब उसके बाद देखिएगा, अब असहाबे कहफ में से एक शख्स आता है, पत्थर के ऊपर हाथ रखता है और उसके बाद हटाने की कोशिश करता है, नहीं हटता। उसके बाद कहता, परवरदिगारा मुझे अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल नजर नहीं आता, अगर असहाबे कहफ इस मंजिल पर हैं तो परवरदिगारा हमारा क्या होगा? हम तो अपनी इन कोताहियों को भी अपनी कामयाबी शुमार करते हैं, हम अपनी नाफरमानी को इताअत कहते हैं, हम अपने गुनाहों को अच्छाई कहते हैं। हमने तो खराबियों का खूबसूरत चेहरा बना दिया और अच्छाइयों के खूबसूरत चेहरे को मकरूह और भयानक और डरावना चेहरा बना दिया। बाज़ीदो एक मर्तबा पत्थर को पकड़ा, का पूरी जिंदगी चेक करने के बाद कोई ऐसी नेकी नहीं नजर आती जो मैंने सिर्फ तेरे लिए की। याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि एक रात मैं इताअत वालिदैन की बात कर रहा था, लेकिन उसके जुमरे में दो बातें और भी कहता हुआ चलूंगा। याद आता है कि एक रात मेरी बूढ़ी मां ने मुझसे कहा था, बेटा प्यास लगी है, पानी लेते आओ। मैं मां के लिए पानी लेकर आया, बूढ़ी थी, कमजोर थी। मैं जब पानी लेकर आया तो मेरी मां की आंख लग गई। पूरी रात मां के सरहाने खड़ा रहा कि पता नहीं कब मेरी मां की आंख खुले और मेरी मां को प्यास का गलबा हो और पानी की जरूरत हो। यहां तक कि मैंने इसी हालत में सवेरा कर दिया। मेरी मां की आंख खुली, मां ने मुझे देखा, कहा लाल कब से खड़े हो? कहा उस वक्त जब आपने कहा था पानी लाने के लिए, उस वक्त से खड़ा हुआ हूं। कहा अब मेरी मां मुझसे बहुत खुश हुई, उसने मुझे दुआएं दी, मगर माबूद यही वो एक अमल है जो मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था, उस अमल का वास्ता मेरे लिए रास्ता खोल दे। अब जो उसने हाथ लगाया, पत्थर 1/3 हट गया था, 1/3 हट गया, 1/3 हट गया, इसलिए कि यह खुलूस से की गई इबादत थी जो मां की इताअत की गई थी। दूसरा आदमी आगे बढ़ा, दूसरा असहाबे कहफ में से बढ़ा, उसने कहा परवरदिगारा मैंने भी अपने दामने अमल को चेक तो किया, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं पाता जो तेरी बारगाह में जिसका वास्ता दे सकूं, लेकिन एक अमल मिलता है और वो अमल ये है कि एक मर्तबा मैं अपने खेतों में जो ज़राअत होती थी, एग्रीकल्चर जमीनें मेरे पास थी, एक मर्तबा एक मजदूर को लेकर आया था। मजदूर को लाओ तो मासूम फरमाते पहले से उजरत मुअय्यन कर दो और उसके बाद बढ़ा कर दोगे तो खुश रहेगा। बाज़ीदो ये कायदा है। अब आइए, कब मैंने उजरत मुअय्यन नहीं की थी, अब काम शाम को तमाम हुआ तो मैंने जो उसको दिया वो उस पर राजी नहीं था, नाराज होकर जाने लगा। मैंने कहा चले जाओ, निकल जाओ। ये कई मर्तबा हम और आप भी करते हैं, जब घर बनवा रहे होते हैं उस वक्त करते हैं, जब मजदूरी करवा रहे होते हैं उस वक्त करते हैं। अजीजो छठे इमाम इसी बात पर नाराज हुए जिनके हम मानने वाले। इमाम ने देखा खेतों में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, इमाम ने एक नया चेहरा देखा। हम ये कहते हैं कि हमें अपने नहीं याद रहते, हमारे मौला को देखिएगा कि मजदूर के चेहरे याद रहते हैं। का ये नया चेहरा है? कहा एक काला नौकर मिल गया था। का क्या मजदूरी रखी है मुसादिर? का मौला गरीब है, जरूरतमंद है, शाम को जो दे देंगे उस पर राजी हो जाएगा। इमाम ने कहा तुम हराम कर रहे हो, इसलिए कि पहले उजरत मुअय्यन करो और उसके बाद अगर उजरत मुअय्यन नहीं होगी तो उसके हक से ज्यादा दोगे तो उसे ये एहसास रहेगा शायद कम मिला है। उजरत मुअय्यन होगी तो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा तो शुक्र अदा करेगा कि मेरे हक से मुझे ज्यादा मिला। बाज़ीदो ये उसने सुन लिया, इमाम नाराज हुए थे। अब आइए यहां की मंजिल असहाबे कहफ की। उसने कहा जाओ, चले जाओ, मैं यही लूंगा। मजदूरी से वो राजी नहीं था। उसके जाने के बाद खुदाया हमारा ज़मीर भी किसी दिन जाग जाए, हमारा ज़मीर भी किसी दिन जाग जाए और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। एक मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, उसका हक उसे नहीं दिया, मेरे लिए इसमें से एक दाना भी हलाल नहीं होगा। का उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, खेत पर बड़ी मेहनत की। जब फसल तैयार हो गई तो उसको राजी करने के लिए मैं लाया। का ये पूरा खेत तुम्हारा, ये पूरी फसल तुम्हारी। उसने कहा उस दिन थोड़ी मजदूरी नहीं दे रहे थे, आज ये पूरा दे रहे हो। का मैं अपनी गलती पर नादिम हूं, लेकिन मैंने ये अमल जो
किया था माबूद सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, क्योंकि उस दिन मैंने नाफरमानी करके तुझे नाराज कर दिया था। अब जो हटाया तो एक तिहाई पत्थर और हट गया था, रास्ता बन गया था। अब उसके बाद तीसरा असहाबे कहफ में से खड़ा हुआ। अब उसके बाद उसने कहा कि परवरदिगारा, स्टारवेशन था, कहत आया हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे, लेकिन मेरे पास खाने पीने का सामान मौजूद था। एक मोमिना, एक साहिबे किरदार औरत आई, कहा मेरा बच्चा भूख से बिलक रहा है, थोड़ा खाने को दे दे। मैंने कहा मैं उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक तू मेरी जरूरत नहीं पूरी कर दे, मैं एहतियात से गुफ्तगू करूंगा। तो उसने कहा तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो तो मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा। वो औरत चली गई कांपती हुई। उसने कहा तुम गुनाह की बात करते हो, मुझे खुदा से खौफ आता है। वो चली गई। कहा मुझे कोई डर नहीं महसूस हुआ। लेकिन दोबारा फिर जब बच्चा तड़पने लगा तो फिर दूसरे दिन आई और उसने उसके बाद कहा कि भाई मेरी मदद कर दो। कहा तेरा मुतालबा भी वही है, मेरा मुतालबा भी अपनी जगह है। वो वापस चली गई, लेकिन जो कांपती हुई गई थी, अब उसके बाद मैं हिल गया और उसके बाद मैं उसके घर पर गया और उसके बाद कहा बहन तुझे जो चाहिए ले जा, मैं अब उस गुनाह से तायब हो चुका हूं, उस इरादे को बदल चुका हूं। परवरदिगारा, उस वक्त जो खौफे खुदा दिल में आया था और उसके बाद मैंने जो उस मोमिना की मदद की थी, पर मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था। अब जो उसने ऐसे किया तो पत्थर पूरा हट चुका था, रास्ता बन गया था, असहाबे कहफ बाहर आ गए। मैंने जिस जुमले पे आपको छोड़ा था वहीं वापस आऊं। अजीजों, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तरक्की हो नहीं पाती, जॉब मिल नहीं पाती, इम्तिहान में कामयाबी हो नहीं पाती, लड़की का रिश्ता हो नहीं पाता, लड़के के लिए अच्छा शरीके सफर मिल नहीं पाता। हमने कहा कोई रुकावट है, रुकावट कोई नहीं है, हमारे गुनाहों की रुकावट है। खुलूस से उसके लिए काम कीजिए, रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। सलावत पढ़े बाबा से एक मर्तबा इससे बेहतर बुलंदतर सलवात पढ़िएगा। खुलूस से उसके मैं बच्चों की जिम्मेदारी वालिदैन के हवाले से बयान कर रहा था तकरीर के दोनों हिस्सों में। हाँ अजीजों, इताअत करने के लिए बच्चों का ये सिन तो आ जाए कि बच्चे समझने लगे। है इताअत तो वहीं से शुरू होगी ना, वाजिब वालिदैन की इताअत वहीं से होगी कि जहां से बच्चा समझ सके तो उसके बाद इताअत करेगा। लेकिन रबाब के असगर के शऊर का क्या आलम है, रबाब के असगर के शऊर का क्या आलम है। ये मरियम के ईसा में भी शऊर नहीं है कि 6 माह का असगर अरे बाप की इताअत को किस तरह समझता है कि जब करबला के लिए मदीने से निकले, बाप ने कहा बेटा महज़र शहादत में तुम्हारा भी नाम है। असगर पलट के आगे, उस वक्त तो 6 माह के भी नहीं है, असगर महज 9 दिन के थे, पलट के आगे वो शऊर अजीजों, शऊर इताअत पैदल ही देखें। उसके बाद अजीजों, करबला में बचाने वाले शहीद होते रहे, असहाब व अंसार शहीद होते रहे। आज रबाब के असगर का मातम करना अजीजों, अरे गर्चे करबला के शहीदों में सबसे नन्हा शहीद है, लेकिन हाँ मुसीबत सबसे बड़ी है। अली असगर की शहादत कोई छोटी मुसीबत नहीं है। अब हुसैन से पूछो कितनी बड़ी मुसीबत है। बाजीजो, जब सब शहीद हो गए, हुसैन ने आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई मददगार जो मेरी मदद को पहुंचे। बाजीजो, हुसैन का कहना था कि रद्द अमल 2 जगह हुए, एक सैयद सज्जाद के खैमे में, एक रबाब के खैमे में। बस सैयद सज्जाद बाजीजो, अरे 2 ही तो बाकी थे, या सैयद सज्जाद या अली असगर। बाजीजो, एक बीमार है, एक शिशमार। अली असगर, एक मर्तबा अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया और कहा ए बाबा नुसरत के लिए अली असगर हाजिर है। उधर सैयद सज्जाद ने गश से आंखें खोली और उसके बाद बेसाख्ता मक्तल की तरफ बढ़ना था। हुसैन ये मंजर देख रहे हैं, आवाज दी, या उख्ती उम्मे कुलसूम खुजिए, ए बहन उम्मे कुलसूम, अरे सैयद सज्जाद को रोक लो, अरे मोहम्मद को बचा लो। बाजीजो, सैयद सज्जाद को उम्मे कुलसूम ने रोक लिया। उधर चले हुसैन रबाब के खैमे की तरफ, असगर रबाब की गोद में। रबाब कहती आका, आका असगर ने आपकी इस आवाज पर अपने आप को झूले से गिरा दिया। एक मर्तबा मौला ने कहा रबाब मेरे असगर को मुझे दे दो। असगर को हाथों पे लिया। बाजीजो, अब तक जो मक्तल में जाता था शहीद मुजाहिद जाता था तो घोड़े पर सवार होके जाता था, ऐसा मुजाहिद नहीं देखा जो अपने बाप के हाथ
यजीद तूने गलत भी नहीं समझा। हाँ ये गलत जरूर है, हुसैन तुमसे सुन नहीं चाहते लेकिन हाथों पे कुरान जरूर ला रहे। अली असगर कुरान नातिक है। बाजीजो आए और उसके बाद लश्कर को खिताब करके कहा, ए लश्कर यजीदी, तुम्हारे जामे नाकिस में हुसैन से अगर कोई गलती सरजद होगी, मगर इस बच्चे से तो कोई गुनाह नहीं हुआ, एक कतरे आब इसे पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया। जालिमों ने पानी नहीं पिलाया। वो उसके बाद हुसैन ने कहा, तुम समझते हो हुसैन पानी खैमे में ले जाएगा, लो मैं अली असगर को जल्दी रेत पे लेटा देता हूं। अरे कोई औलाद वाला आके एक कतरा पानी का अली असगर के दहन में टपका दे। बाजीजो हुसैन ने जिस करबला की मक्तल पे असगर को लेटाया, कैसा मक्तल है, एक मिसरा पढ़ूंगा सर पीट लोगे। अल्लामा मीर अनीस कहते हैं, अरे भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर, हाय ऐसा सुलगता दश कि करबला में दाना जो है सुलग जाता था, जल जाता था, भुन जाता था। हाँ मैंने ये शेर मिसरा पढ़ा, अब आओ मैं तुम्हें सुनाता चलूं। हुसैन ने अब जलती रेत से असगर को उठाया। हुसैन प्यासे, असगर प्यासे, खैमे में पानी की एक बूंद नहीं। लेकिन जब हुसैन ने उठाया तो हुसैन के हाथ नम थे, हुसैन के हाथ नम थे। मैं सोच में पड़ गया, जालिम तो पानी नहीं लाए थे, क्या पानी उबल पड़ा था? करबला के मक्तल में पानी उबला भी नहीं था। फिर हुसैन का हाथ नम क्यों था? इसलिए कि हुसैन ने जूं ही लेटाया, वह गर्मी की शिद्दत से अली असगर के जिस्म पे छाले पड़ गए थे। अब जो हुसैन ने उठाया छाले फूट गए थे। वह हुसैन का हाथ अरे छालों से बहने वाले पानी की नमी से नम हो गया। जालिमों पानी पिला दो। जालिमों ने पानी नहीं पिला, वो मुंह फेर फेर के रो रहे थे। उमर साद ने कहा, हुरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को पता कर दे। तीरे सैशोबा बस चला, खता कर गया, फिर चला खता कर गया। उमर साद आया, बाजू थामा और उसके बाद कहता, हुरमुला तुझे क्या हो गया, तेरा तीर खता कर जा रहा है। हुरमुला ने कहा, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा। बस क्या हुआ? कि जब मैं तीर चलाता हूं तो देखता हूं सामने रसूलुल्लाह है, सर पे मामा नहीं है। अरे सीना पीट के ए हुरमुला मेरे हजरत ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं तीर खता कर जाता। मैं एक मर्तबा हमारे साथ ने कहा, अब आंखों को बंद करके तीर चला। आंखों को बंद किया, तीर चला। असगर ने हुमक के गला बढ़ा, बफन कलब सबियो अला यदिल इमाम। अरे तीर गले को छेदता हो, बाजू में पैबस्त हो गया। हुसैन के हाथों में अली असगर का दम निकल गया। हाजिरो हुसैन के हाथों पे अली असगर का दम निकल गया, खून चेहरे पे मला। हुसैन अरे जिसके लिए हबीब का लाशा उठाना मुश्किल न था, चिश्माहे का लाशा उठाना मुश्किल हो गया। बाजीजो अरे 7 मरतबा आगे बढ़े, पीछे आए, आप अमल करेंगे रोजा शुरू, लेकिन ये सोच के रोना, सर पीट लेना, हाय चिश्माहा असगर हुसैन ने हाथों में लिया, कहते जा रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्री। बाजीजो आखिर हुसैन ने ताकत जमा की, दाखिले खैमा हुए, रबाब बड़ी, ए आका हुसैन मेरे असगर को पानी पिला लाए। सकीना बड़ी, ए बाबा असगर को पानी पिला लाए। हुसैन कह न सके, अब आका दामन हटाया, बस सकीना ने मुंह पीट लिया और रबाब ने कहा, ए लाल क्या तुम जैसे बच्चे भी गैर किए जा रहे? वो हुसैन क्या जिसने किसी को दफन किया था, आए पुट्टे खैमा पर कब्र खोदी, अली असगर को कब्र के हवाले किया। अरे नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ कर शबीर उठ खड़े हुए, दामन को मातुल हुसैन